brings us to Snell's law or Snell's law, whatever you want to call it. Snell's law. Okay. So Snell's law क्या बोलता है बताए? What is the most important thing? Always there is a certain ratio which is maintained between the angle of incident and angle of reflection in one pair of media. What do you mean by one pair of media? मतलब एयर से ग्लास में गया तो उसका रिफ्लेक्शन उतना ही होगा, वो रेशियो ऑफ आई एंड आर उतना ही होगा. No one can change it. The quality of the glass is same. Understanding? So basically the angle at which it will tilt is fixed. समझ में आ रहा है? पानी में कितना टिल्ट करेगा, ग्लास में कितना टिल्ट करेगा, कोई ट्रांसलूसेंट एलोवेरा में कितना टिल्ट करेगा, that is fixed. And that ratio is also fixed, and the ratio is given to you by Snell's. Understood? So let's try to understand the ratio now. Now, for a given pair of media, now these are the laws. Snell's law is basically laws of refraction. Okay? ये आप लोग लिखो. Laws of refraction. This is a new part. अभी नहीं, बाद में. Laws क्या है refraction? हमेशा कोई भी हम लोग मीडिया ले, it will always and always follow the laws of refraction. Understood? So what is the first law? First law tells me that the incident ray, normal and point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane. मतलब क्या? If say this is a beaker that I have, which I just showed you. This is filled with glycerin, for example. Okay, this is filled with glycerin. Okay, glycerin से भरा. This is air, isn't it? This is air. So, if this is my what ray? Incident ray. This is my normal, and this is my refracted ray. Am I right? This is my angle of incidence, and this is my angle of refraction. All of these will lie on the same plane. Same plane मतलब क्या? ये मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ कि नहीं मेरे एक प्लेन में? If this is my x-axis, this is my y-axis, and this is my x-axis, 2 dimensional है कि नहीं है? हमने अभी 3 dimensional, 2 dimensional दोनों देखा है ना? So what does this basically mean is, अगर मेरा angle of incidence इसी लाइन पे जा रहा है ऐसे, तो ये ऐसे इधर से निकलेगा नहीं. समझ में आया? Angle of incidence अगर ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे ही जाएगा. It will not come out projecting from in some other dimension. समझ में आया? They are all in a 2 dimension. They will maintain the dimension. मतलब हमेशा हम लोग पेपर में उसको ड्रॉ कर पाएंगे. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पकड़िए, पकड़. अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे डाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से निकलेगा, वो पूरे चीज को हम एक पेपर में ऐसे वर्टिकल पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं. They will always lie in 2 dimensional figure. मतलब they will, you just remember, they will always lie in the same plane, which means it is 2 dimensional. मतलब 3 dimension में दिया नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं. देख, अगर मेरा बोर्ड के बाहर अंदर से आ रहा है ना लाइट, तो बोर्ड के बाहर निकलेगा, लेकिन वो एक प्लेन में है. मतलब उसको एक, अगर मैंने क्या कहते हैं, शीट रख दिया ना, वो शीट पे उतार सकते हो उसका रिफ्लेक्शन. वो इमेज हम लोग शीट पे उतार सकते हैं. दैट इज व्हाट इट मींस. अंडरस्टूड? यू विल लर्न मोर अबाउट इट व्हेन यू कैन इमेजिन 3D फिगर्स बेटर. बट बेसिकली इट मींस इट्स द सेम प्लेन. मतलब उसको एक पेज पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. समझ में आया? जैसे हम लोग ऐसे क्यूब ड्रॉ करते हैं, सो वी ड्रॉ इट स्पेसिफिकली फॉर दैट. ऐसे हम लोग ड्रॉ तो कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि ये बाहर आता है, हमको पता है कि नहीं ये बाहर आएगा. मैं ऐसे ही रख पाऊंगी क्या पेज के ऊपर? प्रोजेक्ट ऊपर थोड़ा प्रोट्रूड करेगा कि नहीं? दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट. बट हियर यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस इन द ड्राइंग. यू कैन डायरेक्टली सी दैट इट इज ऑल ऑन द सेम प्लेन. मतलब इस लाइन में गया तो इसी लाइन में वापस आएगा. एंगल चेंज होगा, लेकिन एक पेज में उतार सकते हैं पूरे चीजों को. All the 3 things will lie on the same page. Can you understand? In one page I can draw all 3. If 2 are like this, third will not go somewhere else. सामने से. समझ में आया? So what is the first law? The incident ray, normal, angle of incidence, normal and refracted ray. बस इतना ही. Tell me, what is the first law?
What is the first law? All lie in the same Lie plane. on the same plane. समझे? Clear? हाँ. First law is clear. Second law, very important. The second law tells you for a given pair of media. Given pair मतलब क्या? Water and glycerine, glass and water, air and glass, glass and glycerine. Two pairs I have selected. For a selected pair of medium, two medium if we have chosen. Do I have your attention? हाँ. If I have chosen one pair of medium, any two medium I have selected, what happens? The ratio of the sine angles. मतलब क्या? Sine, ये आप लोग sine क्या होता है? Trigonometry में 9th standard में पढ़ोगे. The ratio of sine angles of incident at is equal to constant. फिर भी मैं बता रही हूँ इनका. Is always constant. मतलब क्या? Sin I का एक वैल्यू होता है. अगर I का कोई वैल्यू हुआ तो 30 डिग्री, तो sin I का कोई एक वैल्यू होगा. अगर sin R का वैल्यू हुआ 40 डिग्री, तो sin R का कोई एक वैल्यू होगा. ठीक है? वो वैल्यू का जो रेशियो है वो है कांस्टेंट होता है. ठीक है? सो व्हाट डज इट मीन? एनी तो बेसिकली क्या मतलब है इसका? अगर दो मैंने फिक्स्ड मीडियम लिए हैं तो उसमें कितना एंगल में रिफ्रैक्ट करेगा और कितना एंगल में इंसिडेंट हुआ तो कितना एंगल में रिफ्रैक्ट करेगा, दैट इज फिक्स्ड. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. सो फॉर any pair of अभी आ सकता है. बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है. यही है स्नेल्स लॉ, यही है स्नेल्स लॉ. ठीक है? फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया and given color of light also matters. You know why? Because every color deflects at different angle. हम लोग white light देखते हैं, लेकिन तुझे पता है व्हाइट लाइट में कौन से कलर्स होते हैं? बताओ. विबग्योर. सारे कलर्स होते हैं ना, और सारे अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं. विबग्योर में ऐसा, अगर व्हाइट लाइट मैंने प्रिज्म से पास किया तो ऐसे करके स्प्लिट कर जाता है वो. सारे अलग अलग क्यों? पता है? सबके वेवलेंथ अलग होते हैं. You will study this later in your life. But when white light is passed through a spectrum, why do you see a rainbow-like thing? Because white light is made up of how many colors? 7 colors. Vibgyor, all colors of Vibgyor. But each color of Vibgyor is different. तो मतलब क्या बताओ? मुझे एक एक करके बताओ. ये मेरा white light है, इंसिडेंट रे है मेरा white light. अभी ये white light गया, सोच मैं कोई भी ये सरफेस से कहूँ, यहाँ पे ये white light पहुँच कुछ तो करके पहुँच गया. अभी यहाँ से रेड लाइट, येलो लाइट, सारे जो कलर्स है ये ऐसे अलग अलग स्प्लिट हो गए कि नहीं? मैम वायलेट भी देते हैं. वायलेट बता ऐसे जाता है, ऐसे स्प्लिट होता है. तो मुझे बता, ये एंगल ऑफ, ये अगर तेरा एंगल ऑफ ये तेरा ये है, सोच नॉर्मल, दिस इज माय नॉर्मल. सो दिस इज माय नॉर्मल, देन दिस विल बी माय इंसिडेंट रे. दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड रे फॉर रेड. This angle will be the refracted ray for orange. So angles are different or not? Angles are different for each color. Angles are different or not? Tell me. For each color, angle of refraction is different or not? That is why writing for any two pair of media and any given color. Color is also important or not? Only pair is important or color is also important? कौन सा मैंने रेड लाइट किया, येलो लाइट किया, व्हाइट लाइट किया, वो स्प्लिट कितना करेगा, वो कितना एंगल बनाएगा, लाइट के कलर के ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सा पेयर ऑफ मीडिया है ये दोनों पे डिपेंड करता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके. फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन कलर, द रेशियो ऑफ साइन, हाँ साइन, SIN, लेकिन हम लोग स्मॉल में SIN, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, बताओ बेटा, कांस्टेंट. एंड कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय साइन ऑफ और साइन ऑफ. इसको हम लोग कांस्टेंट को क्या लिखते हैं? व्हाट इज इट डिनोटेड बाय? इसको क्या बोलते हैं बताओ? म्यू, MU लेते ना, MU, म्यू बोलते हैं. पहले आपको समझाने के लिए मैंने आई, आप लोग म्यू
म्यू क्या है ये? एम जैसा दिख रहा है कि नहीं? ये देख, एम जैसा दिख रहा है कि नहीं? म्यू क्या बोलते हैं इसको? सो बेसिकली व्हाट डज इट से? दिस से sin i upon sin r is equal to constant is equal to म्यू म्यू। समझ में आया? म्यू को तो अगर तुझे दिया है, सुनो, अगर आपको दिया है, अभी अगर देखते हैं वाटर और एयर का देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड एयर, ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड एयर मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को लिखवाया था, बताओ। 2.25 into 10 raised to 8 एयर का कितना है? 3 into 10 to the power 8 to the power 8 मीटर पर सेकंड। वाटर का है 2.25 into 10 to the power 8 meter per second। दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा? 300 upon 225 that is equal to 4 upon 3। So mu का वैल्यू क्या होगा? 4 upon 3 और you can also write 1.333। ये है mu ऑफ, ये कैसे लिखोगे? mu सिर्फ नहीं लिख सकते, सबका mu अलग होगा कि नहीं? It depends on color and medium। So mu of basically what do we write it as? Mass and water, air and water। एयर और वाटर का म्यू होता है कितना? 1.33। याद रख पाओगे? 333 मैम 1.3 के ऊपर 3 के ऊपर डैश कर दिया तो चलेगा। हाँ, चलो ये कॉपी कर लो जल्दी से।